would like to take this opportunity to introduce our first guest, Shri Nitesh Kumar Sahu, Youth Leader, Mungeli, Chhattisgarh. Shri Nitesh has been awarded the National Youth Award by the Ministry of Youth Affairs and Sports for community service. He is in the board of governing member of Agricultural Production Organization and the president of Fulwari Shiksha Evam Yuva Kalyan Samiti. We welcome you, Nitesh ji. Next, I would like to introduce Dr. Philippe Awono, Assistant Professor at the Faculty of Law and Political Science, Jean Moulin University, France. Dr. Awono is a political scientist whose research work focuses on international security, diplomacy and development, and has had several publications in peer-reviewed books and journals. We like to welcome you, sir. Our next guest is Shri B. Matkam, Transformed Community Influencer. Shri Matkam has been an active influencer in the sphere of social transformation and has been an inspiration to many. We are delightful to have you, sir. Our next guest is Ms. Shweta Karambelkar, Youth Representative from our very own IIM Raipur. I now take this opportunity to introduce the moderator for this panel, Dr. Sarveshwar Bhure, IAS, DC, Raipur. Dr. Bhure completed his MBBS and belongs to the batch of 2011. He has received several accolades for his service, including the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration and the Chief Minister's Good Governance Award. We extend our cordial welcome to you, sir. I would now request Dr. Sarveshwar Bhure to kindly take the discussion forward. Hello. Very warm good afternoon to everyone. So we are here sitting for this side meeting of G20, that is Youth 20, and I guess this Y in a coming year will become a G. So it is a growth phase and it is a very young group sitting over here, and I'm very happy that I am here as a part of a discussion, more in the role of a moderator than a actual panel discussion that I'll be doing. So with us we have four speakers who will talk on this topic of building consensus among communities. So we here in most of the countries, we have a system where everyone is having his or her opinion, and everyone is in a position to give and express his opinion. But though each and every one of us is having a kind of or a different kind of opinion, but it is very essential to have a consensus. Otherwise, we cannot go in a particular direction. So let's hear from our friends. What are their views about this topic? Then we'll, at the end of this, and at the end of the discussion, we'll sum up we'll try to sum up the discussion with some thoughts. So let's start with Nitesh, please. जी सर, आप सभी को सादर नमस्कार। और अभी तक के सत्र में हम सब लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्टीज से सुना, तो हमको एक चीज़ समझ आ गया होगा कि दुनिया में युद्ध का कोई स्थान नहीं है और शांति के माध्यम से ही दुनिया को चलाया जा सकता है। और बड़ा हम लोग का सौभाग्य का विषय है कि भारत को इस बार G20 का अध्यक्षता मिला है, और उस अध्यक्षता की कड़ी में ही इस Y20 का हम लोग आयोजन में आज बैठे हैं। और जब Y20 का आयोजन में हम लोग बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कंसर्न हमारे माइंड में आ गया कि जो आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसमें समुदाय को हमें आम लोगों के बीच में आम सहमति बनाना है, बताना है कि युद्ध से क्या हानि है और शांति से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जब G20 की अध्यक्षता के लिए इंडोनेशिया में बैठक हुआ तो उस समय बाली में ही प्रधानमंत्री जी ने इसको अध्यक्षता मिलते ही जो हमारा जो टॉपिक है उसको कोट किया, और वही एक कोट का जो पार्ट है जिसको हम आज यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं कि हम कैसे हम लोग दुनिया में
विश्व में शांति निर्माण कर सकते हैं, युद्ध रहित विश्व की हम लोग यहाँ आज शुरुआत कर सकते हैं। और उसका आज शुरुआत छत्तीसगढ़ के IIM से हो रहा है। आप लोग को बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, शांति के लिए जाना जाता है। और हम आज यहाँ से एक संदेश, एक प्रेरणा लेकर जाना चाहते हैं समुदाय के बीच में काम करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो युवा साथी बैठे हैं नेहरू केंद्र संगठन से बैठे हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जो शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हैं उनका भी कहीं ना कहीं कंसर्न समुदाय के प्रति ही बेटरमेंट रहता है। तो हम लोग का अल्टीमेटली गोल यही है कि हम कैसे हम समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं और उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात आती है जो हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मैं बात करना चाहूँगा, यूनाइटेड नेशन, जिसका भी लक्ष्य है विश्व में शांति सुरक्षा स्थापित करना। साथ ही साथ भारत एक ऐसा देश है जहाँ ने गौतम बुद्ध और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। और हम इस आधार पर तो बोल सकते हैं कि सिर्फ शांति ही एक विकल्प है एक इस युग में सर्वाइव करने के लिए, खास करके इस समय में जब पूरा दुनिया कोविड जैसे पेंडेमिक से निकल रहा है। और हम इस दौर में हम जो चल रहा है रूस को लेकर, यूक्रेन को लेकर, इस तरह से देश के कई हिस्सों में अलग अलग वार चल रहा है। और छोटे छोटे, चाहे बस्तर में, चाहे नक्सली का मूवमेंट हो, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन इन समस्या के बीच में समाधान कैसा ढूंढा जाए, इसका हमें खुद विमर्श करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आती है युवाओं की। हम सब युवा हैं और कार्यक्रम का भी नाम Y20 है। और Y20 को इसलिए कराया जा रहा है कि G20 को हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते। और हमारा जो देश को यह गौरव है कि सबसे ज़्यादा युवा आबादी होने का गौरव है, जिसका अपना अलग डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और ये जो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए एक डेवलपमेंट ड्राइवर के रूप में, भूमिका के रूप में हम लोग सामने आए। सबसे पहले हमारे जो देश है, कभी किसी पे हम सीखने की ज़रूरत है हमें, और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हमारे देश ने कभी भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कभी किसी कोई देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारे देश में तमाम तरह के लोग आए, चाहे पाषाण से आए, चाहे पारसी आए, जिन्होंने भी आया, हमारे अनेकता की एकता में लोग ढले, हमने उनको स्वीकार किया। लेकिन हमने किसी भी साम्राज्य को हमने आक्रमण नहीं किए। लेकिन होता क्या है, जब यूनाइटेड नेशन जैसी जो संस्था है उसमें हमारे न्यायालय उतने पावरफुल नहीं है, वहाँ के जो निर्णय है बाध्यकारी नहीं है। जैसे कि सुरक्षा काउंसिल है, वहाँ का जो निर्णय होता है वो बाध्यकारी नहीं होता। हमारे जो वीटो पावर जो राज्य है जिनके पास तमगा है, वैसे देश, वो लोग खुद ही नियम का उल्लंघन करते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इनको भी शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। और उनके जो निर्णय है वो सबसे पहले हमारी युवाओं की आवाज़ है जो नेतृत्व करता है, वहाँ एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि सबसे पहले सरकार के स्तर पर तो ये उनकी जो संस्थाएं हैं बाध्यकारी होना चाहिए, पहला। दूसरा, आज भारत देश को हमें, हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारे भारत का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे बड़े हमारे यहाँ के प्रवासी हैं। हमारे यहाँ के प्रवासी पूरे देश भर में फैले हुए हैं और अपनी एक विशेष क्षमता के लिए जाने जाते हैं। और हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए इस मंच के माध्यम से कि हम लोगों को ये बता पाए, विश्व को ये समझा पाए कि भारत है, कभी भी उन्होंने युद्ध नहीं चाहा है, हमेशा शांति को प्रोत्साहित किया है। और सब इससे आगे मैं थोड़ा बढ़ता हूँ, युद्ध के बारे में आना चाहता हूँ कि मैं एक नेहरू केंद्र संगठन का एक वॉलंटियर रहा, आप लोग को बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक वॉलंटियर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समुदाय के बीच से आया हूँ। और हम समाज में छोटे छोटे गाँव में लोगों के बीच में कार्य करते हैं। और मैं ऐसा युवा हूँ जो मुंगेली ज़िला, सर जहाँ के कलेक्टर रहे हैं, और सर ने बहुत एजुकेशन के लेकर वहाँ काम किए और ख़ासकर युवाओं को रोज़गार के लिए काम किए। और अभी तो हमारा जो ज़िला है नक्सल इफेक्टेड ज़िला में भी आता है। तो ऐसे ज़िले से मैं आता हूँ और उस ज़िले के मैं पहले ऐसा, मतलब आज 75 साल हो गए आज़ादी के, और मैं अपने परिवार से पहला बच्चा हूँ जो आज हायर एजुकेशन में पढ़ाई कर रहा हूँ। सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्थान से मैंने पढ़ाई किया, वहाँ छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा। सामुदायिक सेवा के लिए मुझे स्वच्छता, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सब के लिए भारत सरकार ने मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। इस तरह से तो ये बताने का आशा यह है कि हम जब छोटे छोटे जगह से जब आते हैं, छोटे समुदाय के बीच में काम करके आते हैं और हम एक वहाँ अपने समाज के बीच में कार्य करते हुए आइडेंटिटी बनाते हैं, और उस आइडेंटिटी के बिहाफ पे आज हमें यहाँ बोलने का अवसर मिलते हैं। और तब हमारी, जब यहाँ मैं आज बोलने आया हूँ तो मेरे साथ में कम से कम जो कम्युनिटी में जिन लोगों के बीच में काम किया हूँ तो उनको भी एक खुशी की भावना आ रही है, उनको भी एक कंसर्न गया कि ऐसा आज क्या विषय है, कोई नीतीश आज वहाँ बोलने गया होगा। तो हम इस समुदाय में सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब कोई भी वार होता है या कोई भी जो बड़ा परिवर्तन होता है वो समुदाय के बीच से आता है। प्रशासन की अपनी एक क्षमता होती है, सरकारें की अपनी एक बाधाएं होती है, क्योंकि उनको भी वैश्विक दबाव रहता है, बहुत सारी डिप्लोमेसी रहती है, बहुत सारे कूटनीतिक रहते हैं, बहुत सारे सॉफ्ट पावर रहते हैं जो सामान्य आदमी के समझ से परे रहता है। तो ये सब के बीच में जो समुदाय की जो जिम्मेदारी होती है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि हमारी एक क्षमता होता है समुदाय के, लेकिन हम समुदाय के बीच में अगर हम उस वर्ग को हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं जिनको उतना बेहतर एक्सपोजर नहीं मिल पाता, उनको ये सामान्य ये जो जितने भी मुद्दे हैं ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, हमारे सामान्य लोगों के जनजीवन से हम इसको समझ नहीं पाते। लेकिन हमको बताना होगा, जब यूक्रेन में जब वार होता है तो हमारे जो गांव के बच्चा वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहा था, वो बच्चा वहाँ फंसता है, फिर उसको लाने के लिए भारत ऑपरेशन गंगा जैसे एक अभियान चलाता है, फिर हमारे भारत के तिरंगा को लेकर भारत के बच्चे निकलते ही हैं, साथ साथ अन्य देश के भी बच्चे निकलते हैं। तो कैसे इस तरह से हमको समुदाय के भाषा में बताना होगा कि कैसे हमारा जो आज वैश्विक लेवल पर हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तो हमको ये बताना होगा कि आज हमारा गांव का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये कंसर्न जगाने के लिए हम लोग सोशल चेंज एजेंट की भूमिका निभा सकते हैं। हमेशा युवा वो शांति का वाहक रहा है, हमेशा युवाओं ने ही हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम समुदाय को समझाएं कि हमें वैश्विक परिदृश्य में हमारी क्या भूमिका है, और खास करके ऐसे रीजन में हम लोग रह रहे हैं जहाँ की, क्योंकि आज G20 के जो कंट्री में जो शामिल देश है ज़्यादातर देश विकासशील देश में आते हैं। वहाँ के अपनी एडवांटेज है, एडवांटेज के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम है। वहाँ वार की स्थिति है, वहाँ गरीबी है, भूखमरी है, तो आदमी इन सामान्य प्राइमरी अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझता रहता है। लेकिन उनको इन सब के बीच में अचानक से कोई मुद्दा आता है और हमारा ध्यान इसमें जाता है, तो हम अपने इसको व्यवहार में अपनाएं और हम जहाँ भी रहते हैं जिस समुदाय, क्योंकि जितने भी नेसेस वॉलंटियर आए हैं सब लोग एक कंपटीशन देकर आए हैं, तो आप कुछ विशेष योगदान करें हैं। अगर आपकी कुछ विशेष इमेज है तभी आपको आज यहाँ आने का अवसर मिला है। आप निश्चित ही 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग को आप लोग प्रभावित करने की आपकी क्षमता है, तभी आप यहाँ कर बैठे हैं। तो हम छोटे छोटे लेवल पे, हमें कोई जरूरी नहीं कि हमें कोई बड़ा मंच मिलेगा, बड़ी बात करेंगे तो लोग मानेंगे। हम जो चीज़ अपने व्यवहार में अपनाएंगे, हम अपने परिवार, क्योंकि परिवार से समुदाय बनता है, समुदाय से देश बनता है और देश से विभिन्न देशों से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनती है। और अगर कोई समस्या, अगर रूस की समस्या, अगर कोई समस्या बस्तर की समस्या है, तो पूरे भारत की सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं है, इससे पूरा विश्व इफेक्ट करता है। जैसे मुझे जो अवार्ड मिला था वाटर कंजर्वेशन, तो आज मात्र मतलब आज जो पीने लायक जो पानी है 2% से भी कम पानी है जो पीने लायक समस्या है, जो वैश्विक समस्या है, जिसके SDG के गोल 4 में है। तो ऐसे इसके लिए भी आप देखते हैं कि हमारे भारत में भी लातूर जैसे राज्य में, राजस्थान जैसे स्टेट में पानी की समस्या है, और इस पानी की समस्या और किसी ने कहा भी कि जो अगला जो वर्ल्ड वार होगा वो वाटर के लिए होगा। तो ये जो सब छोटी छोटी जो समस्या है, अगर हम पानी को भी बचा लेते हैं तो हम, क्योंकि किसी ने भी जो कहा है वो बड़े शख्सियत ने कहा है और कुछ सोच के प्रिडिक्ट किया है, तो हम एक ऐसे वार को भी रोक सकते हैं। तो हम हर भूमिका में भी विश्व को शांति देने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। और निश्चित ही मैं यही 2-3 चीज़ बातें कहकर मैं कंक्लूड करना चाहूँगा अपनी बातों को। पहला कि Y20 का आयोजन एक बहुत अच्छा आयोजन है भारत सरकार की ओर से, जिसे हम सभी युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम इसमें हमारे देश के युवाओं को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोलने को एक्सपोजर मिल रहा है, साथ ही साथ विदेश के लोगों को भी हमारे देश में आने का, जानने का अवसर मिल रहा है। साथ ही साथ हमें एक अंतर्राष्ट्रीय समझ बनने की हमें एक विकसित हो रहा है, और हमारी इसमें क्या रोल हो सकती है हम सबको सोचना चाहिए, पहला चीज़ है। दूसरा, मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है और आदमी समाज से अलग नहीं हो सकता। हमारे तमाम जिम्मेदारी हो सकती है, पारिवारिक जिम्मेदारी हो सकती है, कोई हमारी लाइबिलिटी हो सकती है, लेकिन सबके केंद्र बिंदु में समाज और समुदाय होना चाहिए। और जब हमारा समुदाय सुरक्षित है, अगर समुदाय में अगर शांति है, समुदाय खुशहाल है, तो हम खुशहाल हो सकते हैं। तो हमें अपने लेवल पे समुदाय को सुरक्षित रहने के लिए, शांति रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है हमें जाति, धर्म, सांस्कृतिक, आर्थिक ये तमाम मतभेदों को भुलाकर हमें एक वैश्विक नागरिक की भूमिका में आना चाहिए। और जैसा हमारा जो ध्येय वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, इस भाव के साथ हमको कार्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Nitish. Nitish gave a oral introduction about the kind of work that he is doing and introduction about this whole initiative. Now I request Dr. Philippe Aubé-Ono
He is a assistant professor in Jean Moulin University, France. I'll request you to talk about specifically about the topic like building consensus among the communities. Thank you. Okay, thank you for giving. I will introduce my words by maybe telling an history related to our topic this afternoon. During one of my various field of studies, especially in Chad and Central African Republic, we used to discuss with people during focus discussion group. And one day I had a question from a lady. The lady was thinking that I'm working with an NGO and that you are coming over there to bring peace. And the lady asked me, do you have peace in your bag? Did you bring us peace in your bag? And I was like, what do you mean? And she tried to explain, and she was complaining. In fact, she was complaining because she was saying, you people, when you come, NGOs, international organizations, different partners, when they come here, there, they behave as if they have peace in a bag, which means they may leave the bag and go without trying to know what is the socio and anthropological context, without trying to know what might be the roots of the conflict, without trying to know what people really want, because something is to have maybe a peace building or reconstruction plan from UN, but something is to also know what are the roots of the problem in order to have suitable responses. And I told to the lady that I do not have peace in my bag. I'm here to understand why there is no peace. That's why we have this focus group. I'm telling this story just to say that sometimes when we talk of community related to peace building, the problem is that they are not too much involved. And why they are not too much involved? Because sometimes we do not really know what are their problems, what do they really need, what are the roots of the conflict where those people are living. So after this story, I will say some few words related to the topic of this afternoon. The first, if we talk of community, it means that we acknowledge the fact that there is a difference. And if there is a difference, it means that people have to be together even if they are different. And in my culture, we used to say only one hand cannot tie a bag, which means to tie a bag, we need many hands. So let's consider this afternoon that peace is the bag, and the different hands are our communities, our cultures. So if you want to tie the bag called peace, we need to involve our different communities, our different cultures, so that at the end of the day, we have one hand from different hands. What does it mean? It simply means that, to me, when we talk of peace and community engagement, we have to raise out some expression that have to come every day in our common life. Expression like dialogue, cultural dialogue, diversity, discussion, tolerance, difference. Why? Because when you look closely at different conflicts
I'm talking especially of the field that I really master, Central African Republic and Chad. You will find out that sometimes the problem is that there is no acceptation of the difference. There is stigmatization. If you go, we can leave even this field to move to Mali. Many people do not know that when we talk of Tuareg, Tuareg is a stigmatization. It's not their real name. When you already call them Tuareg, it means that you do not consider them. Their real name is Kel Tanasek, but many people do not know, which means that if you want to deal with peace in Mali and you don't take into consideration this community aspect, you are wrong. You are wrong. So I will not be long. So I just wanted to point out this issue of difference, this issue of different hands, our different culture, and I end my words by saying this afternoon that we have to go back from here knowing that peace is a common bag that we have to tie together. Thank you. Thank you, Dr. Philip. You gave a very good anecdote and also talked about the very important concept of accepting the difference. Now we have a next speaker. His name is Mr. Shri B. Matkam. He is a transformed community influencer. I request you to please start your discussion. सबको नमस्कार, मेरा नावा जोहार ना पेदर मडकाम बीमल सूक्ष्म जिला सिंतल नरताना पेद्द बुड़कल दाटेनो जी मेरा नाम मरकाम भीमा है। मैं चिंतानार ग्राम। माइक ऑन कर लीजिए। हेलो जी मेरा नाम मरकाम भीमा है। ना पेदर मडकाम बीमल सूक्ष्म जिला चिंतल नरताना पेद्द बुड़कल नाटेनोन। मेरा नाम मरकाम भीमा है। चिंतलनार थाना पेद्दा बुड़केल गांव और सुकमा जिला से हूँ। माओवादी संगठन तगा ना पेदर अर्जुन उर्फ माडो इंजो केतनोरु। संगठन में मेरा नाम अर्जुन और माडो के नाम से जाना जाता था मुझे। हाल के नाकि निजायो मनता बाबू डोल्तोर वेरोर तमोर मंतोर मूंडू एलस्क मनता। गांव में मेरी माता है, मेरे पिताजी नहीं है, एक भाई है और 3 बहनें हैं। सूरु 300 माह नाटे अगा सड़क इल्ला, स्कूल इल्ला, अस्पताल इल्ला, बिजली इल्ला। स्कूल मत्ता स्कूल तुनवेंडे नक्सलवादेरो बम वाटे उड़ा के तोर। शुरू से ही हमारे गांव में स्कूल नहीं था, ना ही सड़क थी, ना बिजली थी। और जब स्कूल बना तो उसे माओवादी नक्सलियों ने बम लगाकर ध्वस्त कर दिया। मावा नाटे इंज वेंडे नक्सल प्रभावित क्षेत्र तक मावा नाटे मिनते मुन्ने वेंडे नक्सलवादी मा नाटे वायना दायना मीटिंग कियनोरू। अभी भी हमारा गांव नक्सल प्रभावित है। नक्सली पहले से ही हमारे गांव में आते जाते हैं, मीटिंग करते हैं। हाल के मीटिंग लोपा नाटेना जनता किन इदु जल जंगल जमीन ता लड़ाई माओवादी पार्टी जनता मैदे काम किया उनता। माओवादी पार्टी जनता मैदे काम किया उनता। हाल के ಈ ಲೂಟಿ ಸರ್ಕಾರ ತುನ್ಕು ಟೆಂಡಿ ಎಸನ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿ ಇದು ಲೂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖತಮ್ कीसी जनता राजाधिकार जिड़कालीन जो माओवादी पार्टी तोरू व्यत तोरू। गांव में जब मीटिंग करते हैं तो ये कहते हैं कि
ये हमारा जल जंगल ज़मीन है। इसमें सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काते हैं, लोगों को अपनी ओर करते हैं। అలాగనే सरकार लूटपाट सरकार ఈ పోలీసు ఆంగడం ఇది వ్యవస్థను खत्म किया ना, ये पुलिस की खत्म किया ना, जो जनता की ओंडो सरकार विरोध थे, पुलिस विरोध थे ओंडो जनता की अलम वेतन लेके माओवादी जनता की वेत तोरू। और ये कहते हैं कि सरकार जनता से लूटपाट करती है और उन्हें भड़काती है कि शासन के विरुद्ध, पुलिस के विरुद्ध कैसे लड़ा जाए। हालकेने इसुंत पार्टी इदो नेले जनता इदो पार्टी काम किए मोंता जो आलसी मंजी नन्ना सुडला उमुरते ना किनो नक्सलवादी 2001 ते पार्टी से भर्ती कितोरू। यह जो पार्टी है जनता के हित में कार्य कर रही है। मैं छोटी उम्र से ही उनकी बातों से प्रभावित होकर 2001 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ था। हालांकि नाकिन पार्टी ते वायना 2 साल कैसी नाकिनो मा लोत्ता याय बाबू पुनवकुंटा नाटिना जनता पुनवा पार्टी ते वत्तो। 2 सालों से मुझे पार्टी में आने के लिए बोलते थे। मेरे घर वालों को इसके बारे में कोई भी पता नहीं था और 2 साल के बाद मुझे अपने साथ लेके चले गए। हालांकि नन्ना अगर नाटिना आस पासु तासवलेवा पूरा 3 साल तक पेर के माँ नाटे माँ यायो नाकिन कैलता ऊर्स मांझी नरगे माया नाकिनो क्या इतना ऊर्स मांझी। और मैं पार्टी में जाने के बाद लगभग 3 साल के बाद अपनी माँ से मिला। मेरी माँ मुझे देखकर इतना रोई और हालांकि नन्ना नाकिनो भर्ती की इस पार्टी तक पुनः नया रिक्रूट तौर किनो 45 मुल्किन टर्निंग तौर पुलिस संग बेले लड़े मायना दुश्मन संग बेले लड़े मायना बेदी सब युद्ध किया ना दुश्मन तक बेले बसे मायना जो 15 दिन टर्निंग सीखा कि तो ना किनो। और पार्टी में जाने के बाद मुझे 15 दिन का ट्रेनिंग दिया गया कि पुलिस से कैसे लड़ना है, पुलिस से कैसे बचना है और उन्हें कैसे मारना है। हालांकि माओवादी संगठन लोपा नाकिनो सांस्कृतिक संगठन CNM सेतन नाटे मन सांस्कृतिक संगठन तक नाकिनो जिम्मेदारी तोरू। संगठन में जाने के बाद मुझे 2 साल तक CNM में मुझे प्रशिक्षण दिया गया। सांस्कृतिक संगठन तक नाकिनो पार्टी माओवादी पार्टी नाकिनो जिम्मेदारी तोर। सांस्कृतिक संगठन में मुझे माओवादी पार्टी वाले जिम्मेदारी दिए। ಈಗ ಮಾओवादी संगठन ಅಂತ ವಿಸರ್ದಾರತುನ್ नार जनतनागेवना पाठ डाकते संदेश तुम जनतनागे भी कितन नन्ना। जो माओवादी का विचारधारा है उसे गांव-गांव जाकर मैं लोगों को बताया हूँ, मैं प्रशिक्षण दिया हूँ उन्हें। हालांकि नाकिन फस्ट पार्टी लोप अगवनु प्रमोशन मनता फस्ट कैंडिडेट सदस्य बने मत्तन आ पेर के पार्टी सदस्य बने मत्तन ACM एरिया कमेटी मेंबर बने मत्तन। और धीरे धीरे मुझे प्रमोशन मिला। पहले मैं कैंडिडेट सदस्य बने मत्तन आ पेर के पार्टी सदस्य बने मत्तन। पहले मैं कैडर सदस्य बना, उसके बाद पार्टी सदस्य बना, फिर CAM बना, हालांकि एरिया कमेटी मेंबरू बने मत्तन, उसके बाद एरिया कमेटी मेंबर बना। आखिरी ते दक्षिण बस्ते डिविजनल कमेटी सदस्य मंजोड़े 143 पोजीशन ना काम कितानु। उसके बाद मैं DVCM बना और मुझे AK-47 दिया गया था। हालांकि पार्टी तक
మావోవాది పార్టీ లోప నన్న పెండు లత్తాను నావ మూతే సైమైన గర్భవతి మత్త తాను బుడియ మావోవాది నేతలವರು హాస్పిటల్ తగ ఓస్ మంజి ತಾನಕಿನು పిలుతును టెండియస్తోరు మాకిను కెల్లోడు ఆ పేరుకి నాకిను వెండే नसबंदी कित्तो। जब मैं पार्टी में था तो तभी मेरी शादी की गई और मेरी पत्नी 6 महीने से गर्भवती थी। तब बड़े कैडर के नक्सलियों ने हॉस्पिटल में ले जाके उसका गर्भपात किया गया और हमें इस बारे में पता ही नहीं था और मेरी नसबंदी भी कर दी गई थी। हालांकि नन्ना इंज मम पिल्ला जिलायो में जोड़े मम इड़वो मंडे नरगे दुखीते आलस्तो मम। अभी हमारे बच्चे नहीं हैं, ये सोचकर हम बहुत दुखी रहते हैं। हालांकि नाव मुत्ते पार्टी लोप पिलतुन टेंडियस्त पेर के नरगी बीमर अर्थ पे वेंडे पार्टी इलाज की वो पार्टी लोप नन्ना सरसकितन तेन की इलाज कित के आता है जो पार्टी इलाज की ओर सीधा नाटे ने लो सितर। और जब मेरी पत्नी का गर्भपात किया गया तो तब से मेरी पत्नी बहुत बीमार रहने लगी। मैंने पार्टी वालों से कहा कि उसका इलाज किया जाए, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि नन्ना ಈಗ ಮುಖ್ಯದಾರತೆ ಜೋಡೆ ಮತ್ತೆ ಫೇರ್ಕೆ ನಾವು ಮುತನ್ಕಿನ ಪೋಷವಾಗ್ತಾನು ಈಗ ವತ್ತಪೈ पुलिस अधिकारियों एसपी साहिबीरू तानकिन अस्पताल ते ओसी इलाज कीसी बसा के तो। और मैं समाज की इस मुख्य धारा में शामिल होकर अपनी पत्नी को अपने साथ ले आया और सुकमा के एसपी साहब ने उसकी इलाज में बहुत मदद किया। हालांकि पार्टी लोप माओवादी पार्टी लोप नरगे परेशानी मानता सही सप्ते डोड़े दొరకో सही सप्ते उस्कड़ मन्नो सही सप्ते एयर मीनद मन्नो। संगठन में ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती है, जैसे कि सही समय पे खाना नहीं मिलता है, सही समय पे नहा धो नहीं सकते हैं, सही समय पे सोना भी नहीं मिलता है, जिसके चलते बहुत सी बीमारियां होती है। हालांकि दिन नाले हर दिन ओंड जागा ताकनदे मंता हालकेने जंगल ते टेंट तेने गुड़ियनद मंता। इसी प्रकार हर दिन एक स्थान छोड़कर एक स्थान जाना पड़ता है, जिसमें टेंट के अंदर ही हमें रहना पड़ता है। हालांकि पार्टी पूरा नाटेनग नूक कुसिर जम कीसी ताल की मंजे डोड तिंदनद मंता डोडा नूका जम की युवक मंडे और किनो दरदम का की तोरू। इस तरह से पार्टी गांव वालों से चावल सब्जी मांग के खाती है और जो ये सब नहीं देता है उसे धमकी भी देती है। हालांकि पैसा चंदा वसूली पूरा पार्टी ता फेदरते पैसा चंदा वसूली की तोर तेंदुपता कोई पैसा वसूल की तोर मजदूरी कितना पैसा किन वेंडे हर लोग तगा गरीब जनता ना 300 वसूली की तोर पैसा ही वो के मेरी गई नाटे नगा मंदना दइयो इंजो नक्सलवादेरो जनता की धमकी की तोर। और हर साल जो पार्टी होती है वो ग्रामीण लोगों से पैसा वसूल करते हैं, जैसे कि तेंदुपत्ता का पैसा, और जो लोग बाहर काम करने जाते हैं उनसे भी पैसा वसूल लिया जाता है और जो पैसे नहीं देते हैं उन्हें मारने की धमकी भी देते हैं। हालांकि ने पार्टी लोप पेंडू लत्की वेंडे बात आगा फायदा इल्ले और किनो पिल्ला तासने दाई नसबंदी कीसी महिला तुनु दूसरा जागा तासी तोर पुरुष तुनु दूसरा जागा तासी तोरू। और संगठन में शादी करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि नसबंदी करा दिया जाता है और जो उसकी पत्नी होती है उसे दूसरे एरिया में भेज दिया जाता है। हालांकि माओवादी नेतलोर पूर्व नेतलोरू और पिल्ला और किन मनता दौड़ता खेडल और किने पूरा नसबंदी की तोर बुढ़िया नेतलोर पिल्ला तासे तोर अलग अलग बस्ती जाग तगा नेकनला पढ़े लिखे किए व्यक्ति तोर। और जो बड़े कैडर के नेता होते हैं
वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, विदेशों में भेज के उन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन जो छोटे नक्सली होते हैं उनके लिए ये सब सुविधाएं नहीं होती है। लेकिन स्थानीय लोकल माओवादी कैडर्स किनो बुढ़िया नेतलोर नर्गे दबा की तोरू दौड़ता महिला पुरुष वेतनिंग मेंड्याग अधिकार ಇಲ್ಲ मान समानता ಇಲ್ಲ बुढ़िया नेतलोर महिला किनो शोषण की तोरू। और जो बड़े नेता होते हैं वो छोटे जो कैडर के नक्सली होते हैं उन पे दबाव बनाते हैं, और जो बड़े कैडर के नक्सली होते हैं वो महिलाओं का शोषण भी करते हैं। लेकिन इदे आयवलेव नाटिनग बेनो सौकड़ माने मत के उनकी आर्थिक अमल की इसमें अनम धन संपत्ति तो उनकी जब्ती की सी हाँ 350 पूरी तो दूसरा इलाका थे। और जो गांव के अमीर लोग होते हैं उस पर भी नक्सली उस पर हमला करके उसका धन उसकी संपत्ति सब लूट कर उसे गांव से भगा देते हैं। लेकिन पुलिस परिवार वेंडे नाटिनग मत के हाँ 350 वो किनो तान तक शहर तक पूरी तो पुलिस परिवार तौर के मैंने ना अर्थासोर। और जो पुलिस में है उसके परिवार को भी गांव में रहने नहीं दिया जाता है और उन्हें गांव से भगा दिया जाता है। लेकिन नाटिन और किनो पढ़े लिखे की वोरू अगर नौकरी की वोरू पूरा नक्सली दे अगर अधिकारो सलेमाता। और गांव के लोग बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते और उन्हें सब नक्सलियों के बारे में ही बताया जाता है, उनकी विचारधाराओं के बारे में बताया जाता है। लेकिन लोग नक्सल क्षेत्र थे ना कि नग अगर कितना दोंडू की ना दोंडू मानता माओवादी पार्टी सही जनता में दे काम की वो। और माओवादी पार्टी जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं हैं, जनता के हित में उन्होंने आज तक कोई कार्य किया ही नहीं है। लेकिन बात की तो रू अगर रोड तुनो रोड दाई वोरू अगर बिजली दाई वोर अगर मोबाइल टावर दाई वोर अगर स्कूल दाई वोर अस्पताल दाई वोर नक्सलवादेर। और नक्सली लोग गांव में सरकार की किसी भी सुविधाओं को जाने नहीं देते, जैसे कि बिजली, रोड, स्कूल भवन, ये सब उन तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन वेग वेग लोग स्कूल किन मंडे पूरा स्कूल किन तोड़ फोड़ कितोरू सड़क किनो कह तोरू फूल फूल किनो तोड़ फोड़ कितोर टावर किनो मोटी कितोरू लेकिन ठेकेदार किन गिरफ्तार किस धमकी सी और किन विड़सी मुंतोर पैसा इवकारांते। और गाँव में जो रोड होती है, जो सड़क होती है, उसे काट देते हैं और जो स्कूल भवन होते हैं उसको ध्वस्त कर दिया जाता है, और जो ठेकेदार होते हैं उनका अपहरण करके उनको मारपीट करके भगा दिया जाता है। लेकिन मुखबीरता फेदड़ते नरगे दिन्नालो हमेशा पूरा मावा नक्सल क्षेत्र लोपा मुखबीरता फेदड़ते गरीब आदिवासी जनता केनो हत्या किया मुंतोरू। और जो गांव के आदिवासी है, जो गरीब आदिवासी है, उनको मुखबिरी के शक में रोज आए दिन उनकी हत्याएं की जा रही है। हालांकि as you can all appreciate the kind of conviction he is telling about his experiences, because we are running short of time, so I just have to interrupt you. Maybe we can take up, हम कुछ क्वेश्चन ले लेंगे आपके लिए ताकि लोग आप अपना अनुभव और बता पाए। Now I request, because we are running short of time, we are already overrunning our time, so I request Sushri Shweta Karambalekar to be a student of IIM Raipur to share her thoughts and also to be brief because we are running short of time. Yes, Thank you sir. so much. Yeah. Namaskar. So basically this year's theme of G20 is Vasudhaiva Kutumbakam, which means that world is one family and that we are one big family or one big community. So with this, linking this to the topic, what we understand is that consensus building is quite necessary in all communities. So when we call the world to be one community, what we mean is that the world needs to come together, discuss what are the issues and try to collaborate to find out resolutions and come up with a solution that works for everyone.
When the world is changing today, and with it, it's bringing a lot of innovations which are helpful for the humankind, but it also brings some conflicts and some insurgencies. So, resolving these insurgencies, trying to bring in peace, and also implementing these innovations actually require consensus among the whole world, and actually the collaboration among these communities. India is very good example of consensus. We define India with the proverb unity in diversity. So basically we call it that because it is the largest economy, largest democracy which is successful since 1950, while being one of the wonderful collaboration of diverse cultures, diverse traditions, and multiple different perspectives. We as an Indian are able to do this because we learn the lesson to respect the diversity, respect the differences, and celebrate it. Being a youth member and being the representative of youth, I would also like to put a point as a youth. So the thing is that today's youth is very well aware because of the digital social media, and actually what is happening around the globe reaches to the other part of the world very easily. So because of this, the youth is aware and they are also affected. So one part, something happens in USA, the Indian youth is also affected. So they are also aware, as well as they are actually concerned that they want to bring in change. In first panel, we actually saw people say that we want to be the drivers of change, we are one, and we are the ones who want to be the drivers of peace. So we can also see that youth is quite enthusiastic and they are interested in bringing the transformation in the world. So what I believe is the governments or the organizations can leverage this power of the youth, bring in the collaboration among them, try to build the consensus, try to understand what are their expectations, what are their aspirations, and try to come up with solutions. They would also be able to leverage the power of the youth and make them the drivers of the change. So trying to be brief, I'll just try to basically summarize my point. So the world, any change that has to be brought cannot be brought by force. It has to be brought through collaboration, participation, and actually allowing people to be open about what are their expectations. So the world needs to come together, collaborate, and try to discuss the major issues like poverty, health concerns, or even climate change today. We also know the example of Montreal Protocol, where all the different nations came together to solve the issue of ozone depletion, and we can also see its success, where the ozone is actually reaching to its levels in 1980 by the year 2040. So these such processes can actually help the world come together and make the change. So that's the whole point I would like to make. Thank you, Shweta. Now we can have a 1 or 2 questions, then because already we are ahead of our time, please. नमस्कार, मेरा सवाल मरकाम जी से है कि जब आपने बताया जो नक्सली हैं वो गांव वालों को काफ़ी प्रताड़ित करते हैं, उसके बावजूद भी जो गांव वाले हैं वो एक साथ मिलकर उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं करते, क्यों उतनी प्रताड़नाएं सहते हैं? ಮಾವೋವಾದಿರು ಓಡ್ಕಿನು ನಕ್ಸಲ್ವಾದಿರಿಕಿನು ಜನತ ಕೆತ್ತ ಪರ್ವೋರು ಓಡ್ಕಿನ್ ಪೋಯ್ಸ್ ಮಂಜಿ ಲೋತ್ತಾಗ ಪೋಯ್ಸ್ ಮಂಜಿ ಪೆರಿಕಾಯ್ಗೆ ತೋಸ್ ಮಂಜಿ ಕೊಂಡಾಕಿನ್ ತೋಸಿ ಜಂಗಲ್ ತಾವು ಸಾವ್ಕಿತೋರು ಅವಕನಕಾರ ಅಂತೆ ಮಾವೋವಾದಿರಿಕಿನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಸ್ತ ಪರ್ವೋರು ಓಡ್ಕಿನು प्रतिरोध किए पर्वोर। जो नक्सलवादी होते हैं उनके विरोध में गांव वाले कुछ नहीं कर सकते। अगर जो बोलते हैं उनके हाथों को बांध के उनके घर जाके उनके हाथों को बांधते हैं, उनके आँखों को भी बांध के जंगल में ले जाके मारा जाता है। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रहा है। उनका क्वेश्चन है कि जी सर, जैसे आप नक्सलवाद छोड़ के अभी यहाँ मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, तो आपको कभी कोई धमकी वगैरह या फिर आपको खुद को जान का कुछ खतरा महसूस होता है क्या, या फिर आपको जान का खतरा है क्या? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर से बोलूं? गोंड तिकला आप हिंदी में बता दीजिए।
going to take a surrender कित्तो फेर के सोबे तोर किनो नक्सलवादेरो टारगेट की तोर हाउ की तोर एक्शन की तोर पार्टी किन विड़सी हत्त पया ओन किनो गद्दे रे जो कहती तोर ओन किनो दुश्मन माने मातो मम्मी की सरेंडर आसी पुलिस सुरक्षित ने नौकरी की से बात कम तो जब सरेंडर किया जाता है तो नक्सली उन्हें गद्दार कहते हैं, उन्हें मारने की योजना भी बनाई जाती है और जब कहीं मिलते हैं तो उन्हें मारा भी जाता है। पुलिस सुरक्षित मंजी मम्मा काम की तो लापरवाही कितके एक्शन की साव किया से तोर और हम पुलिस की सुरक्षा में ही काम करते हैं। अगर हम लापरवाही करते हैं और उनके हाथों में जाते हैं तो मार के फेंक दिया जाता है। मती आंध्र तन नक्सली किनो टारगेट मनो ಈ ಬಸ್ತರ್ತ ಆದಿವಾಸಿ ನಕ್ಸಲರಿಕಿನೆ ಗದ್ದರಿने जो कैसी आओ किया से तोरू आंध्रता नक्सलरिकिन टारगेट पार्टी की वो जो अंदर के नक्सली होते हैं उनको पार्टी कभी टारगेट नहीं करती है और जो बस्तर के नक्सली है उनको ही टारगेट करती है और उन्हें गद्दार भी कहती है। थैंक यू। सबसे पहले एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए भारत माता की। आप सभी को जय जोहार। जितने भी अभी अतिथि आए हैं उनसे मेरा सुझाव है कि वो बताएं कि हम देखते हैं कि एक तरफ प्रकृति के प्रमुख 3 अंग है, जल जंगल जमीन और एक तरफ विकास है। तो जो वहाँ के नक्सलवादी की जो विचारधारा के लोग हैं उनको लगता है कि विकास जब उनके तरफ पहुँचेगा तो उनके जल जंगल जमीन को नुकसान होगा। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके जल जंगल जमीन भी बचा रहे और उनका विकास भी हो सके? कृपया मार्गदर्शित करें। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। Good afternoon, sir. Actually we took last question please. My question goes is, as a sociology and psychology student, I have learned that there are different social systems such as caste systems. I also realized that the upper system and the lower system do not interact. In a way that the upper system, you find out that marriages happen among themselves only, and lower class, they are not involved. So my question is, how do we form peace when there are such systems that cause division and oppression in some cases? Aren't we creating an angry and sad generation? Dr. Philip, you would like to answer that? Could you take it again, please? I got what you mean about the different sociological system, but I want to understand the second part of the question, please. The second part of the question, my question goes is that, how do we form peace when there are such systems that cause division and oppression in some cases? Aren't we creating an angry and sad generation? I'm not sure. I'm not sure it creates an what you call angry generation, because I think we have to consider our differences as not only as how can I call it as boundaries, cultural boundaries, but also as tools that we can bring together, because every culture has something to bring. So if you take it as oppression, it will not work. So please consider the fact that every culture has something to bring. The problem is sometimes the fact that there is stigmatization, for example, but it doesn't mean that different systems cannot come together. This is my point of view. Thank you. And the last question, I mean the answer of this question, please. हेलो, मेरा आपने पूछ लिया, ये बता रहे हैं। यस। जल जंगल जमीन मानव समुदाय की प्रारंभिक ज़रूरत है, और जैसा हमारा जो विषय है बिल्डिंग कंसेंस एमंग कम्युनिटीज़, तो सबसे बड़ा जो इसमें है कि हमारा ध्यान होना चाहिए, और जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हम वहाँ के स्थानीय लोग ही प्रयास करेंगे। कोई बाहर से हमारे लिए वहाँ आकर के उसके लिए नहीं लड़ेगा।
और हमारे यहाँ जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं इनको देवी रूप में माना जाता है। जो वहाँ के जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स के अलावा हमारे जो भारतीय जो ग्रंथ है, पुराण है, सब इन तीनों को देवी देवता के रूप में माना जाता है। इसका अलग एक धार्मिक महत्व भी है। तो लेकिन बात आती है डेवलपमेंट और दोनों एक दूसरे के अलग पहलू है। डेवलपमेंट कहा जाता है, विकास हमेशा जल जंगल का ये विरोधी रहता है। तो दोनों का सामंजस्य भी जरूरी है, क्योंकि हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ की आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन हमें जल जंगल ज़मीन को अगर समाप्त करके अगर डेवलपमेंट भी चाहिए तो हमें वैसा भी डेवलपमेंट ना चाहिए। क्योंकि हम आज मंथन कर रहे हैं, SDG की बात कर रहे हैं, पूरे क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो सब के जो मूल केंद्र में वही है। तो हमें स्थानीय स्तर पर इसके लिए जागरूकता करना चाहिए, जिसके लिए आप स्वयं काम कर सकते हैं। धन्यवाद। We appreciate the enthusiasm of the questions, but since we are running short of time, we'll be moving forward. Thank you everyone. This was indeed an inspiring session.